गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अ, सबसे पहले तो एक डिक्लेरेशन देना चाहूँगा, क्योंकि इस लेक्चर में भी मैंने कुछ इंटरनेट से डाउनलोडेड इमेजेस यूज़ किए हैं। ठीक है, आई हैव यूज सम images few images in this lecture which do not belong to me. I have downloaded these images from internet for educational purpose only. I thank all my global friends who have uploaded such helpful information in the form of images. These images help us a lot. So thank you very much. तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, generalized study or the general characters of the sporophytic plant body in pteridophytes. ठीक है, जब पहला लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था इंट्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, उसमें मैंने काफी सारी चीजें बता दी है बच्चों। ठीक है ना, याद होगा आप लोगों को स्पोरोफाइट का क्या काम होता है। स्पोरोफाइट का काम होता है टेरिडोफाइट्स में टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। टू फैक्ट्स। ठीक है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, दूसरा दूसरा फैक्ट फाइल क्या है स्पोरोफाइट्स का बच्चों, दिस इज द डोमिनेंट फेज। डोमिनेंट फेज in the life cycle of any pteridophyte, and it is always a diploid structure. ठीक है, unlike the members of bryophytes where the dominant phase was a gametophyte, haploid gametophyte. ठीक है, तो sporophytes and onwards, sporophytes के बाद जो next plant groups है in the form of gymnosperms and lastly angiosperms, which are considered the most advanced members of kingdom Plantae. In these three different plant groups, the sporophytic phase dominates over gametophytic phase. तो जो जो पॉइंट्स में एक एक करके रीड करता जाऊंगा बच्चों फिर से। ठीक है, जहां पर समझाने का है वहां पर मैं आप लोगों को इलेबोरेट करता रहूंगा। ठीक है, इट इज द इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी in pteridophytes and is meant for asexual reproduction. याद रखना है ये पॉइंट, बिल्कुल हमेशा याद रखना है बच्चों। जो मैंने आपको होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल करवाया था, फिर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल करवाया था। ठीक है, दोनों में मैंने बताया था अलग से। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज मेंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, whereas gametophyte which is very much reduced in pteridophytes and is meant for performing sexual reproduction. Plants are herbaceous. अब ये बात आ गया, herbaceous and non-woody. This is again an important character of pteridophytic group of plants. Herbaceous, herbaceous का ये एक कॉमन जैसा टर्म है। herbaceous means herb like, herb like। ठीक है, non-woody, non-woody, this is technical term. What does it mean? That no secondary xylem is formed in pteridophytes. We know that pteridophytes are the group of organisms or the members of kingdom Plantae which possess true root, stem and leaves. ठीक है, तो in stem and roots there is no wood formation, means there is no secondary xylem formation. And how the secondary xylem is formed? By activity of vascular cambium. So in pteridophytes there is no activity of vascular cambium, वस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए टेरिडोफाइट्स के सारे मेंबर्स विद सम एक्सेप्शंस अगेन आर नॉन वुडी इन नेचर, विद सम एक्सेप्शंस लाइक सियाथिया एंड डिक्सोनिया। These are the members of fourth division of pteridophytes called Filicophyta or Pterophyta. And this is it. This is our Cyathea. You can see stem here. It forms a woody stem. Okay? And this is Dicksonia. It forms a woody stem. But such cases are very rare in pteridophytes. Only few genera they are woody. Otherwise, the rest of the genera are
herbaceous forms. ठीक है, and plants are differentiated into true root, true leaf, and true stem. However, again, in some members, true root or true leaf may be missing. For example, in first division Xylophyta. But remember one thing: true stem is always there. Stem is always there in all pteridophytes. Some of the pteridophytes may lack root. मैंने आपको एग्जांपल बताया था साइलोटम का. In that case, what happens? The function of that root system is performed by unicellular rhizoids. फिर मैंने एक और पॉइंट भी बताया था आप लोगों को. True leaves are absent again in the members of division Xylophyta. What happens in this case? The leaf has upper epidermis, lower epidermis, and an undifferentiated mesophyll cells, but it lacks vascular system in the form of xylem and phloem. Thus, the leaf-like structure found cannot be called a true leaf. ये दिया है. However, in some lower members, for example in Xylophyta, roots are not there. However, unicellular rhizoids are there, and unicellular rhizoids, they arise from underground stem called rhizome. Rhizoids do not arise from aerial stem, they arise from underground stem called rhizome, whereas the leaf-like structures, they lack vascular system, thus cannot be called true leaves. ये एग्जांपल दिया मैंने. In Xylotum, roots are replaced by unicellular rhizoids, whereas leaves, they do not have vascular system, thus can't be called a true leaf. ये है बच्चों, ये साइलोटम का एग्जांपल है. दिस इज साइलोटम. हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखना थोड़ा जरूरी है बच्चों, कि जो पहला डिवीजन है हमारे पास कॉल्ड साइलोफाइटा, उसके सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स है बच्चों. 2 मेंबर्स आर लिविंग, रेस्ट आर एक्सटिंक्ट, रेस्ट आर फॉसिल फॉर्म्स. वन इज साइलोटम, सेकंड वन इज मैसिप्टेरिस. जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब मैं बता दूंगा. ठीक है, तो साइलोटम का एग्जांपल कई जगह पे आएगा. ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखना जरूरी है. दिस इज द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. ठीक है, और जो राइट साइड में है ये एक क्लोज व्यू है ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम विच इज नॉन ग्रीन. ठीक है, और जो छोटे छोटे काले काले चीजें निकल रही है यहां से बाहर, दीज आर यूनिसेलुलर राइजोइड्स. क्यों? मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ मेंबर्स में रूट्स नहीं है. अगर रूट्स होते तो हमको लंबे लंबे जैसे दिखते हैं, बट रूट्स आर मिसिंग एंड दीज आर रिप्लेस्ड बाय यूनिसेलुलर राइजोइडल स्ट्रक्चर्स. वेयरएज ये जो पीला पीला करके दिखाया है बच्चों, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. ऑल्दो दीज आर ग्रीन इन कलर, लेकिन मैंने पीला कलर इसलिए किया है कि आप लोगों को स्पष्ट दिख जाए, है ना. दिस इज इट बच्चों, ये ग्रीन होता है. दिस परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस बट इनसफिशिएंट क्वांटिटी. ठीक है, ये पूरा प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के लिए फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाने का कैपेबिलिटी नहीं रखता है. इसीलिए इन मेंबर्स में जो स्टेम इटसेल्फ है, एरियल स्टेम, इज रिमेन्स ग्रीन. ये आगे के स्लाइड्स में कहीं मेंशन किया हुआ है. ठीक है बच्चों, एंड द स्ट्रक्चर्स सीन हियर इन पिंक कलर, दीज आर स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. अब एक और बात याद रखना है बच्चों, जो टेरिडोफाइट्स के अंदर के स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दे आर ऑलवेज फॉर्मिंग ऑन एरियल स्टेम ओनली. अंडरग्राउंड स्टेम में कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज नहीं बनते हैं बच्चों. ठीक है, बाई चांस कुछ बनते होंगे, कुछ ट्यूबर वगैरह, है ना. दे आर वेजिटेटिव मीन्स. ठीक है, वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो एक एग्जांपल ये हो गया बच्चों. प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स विच आर एंडोजीनस इन ओरिजिन. अब यहां पर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा. रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स बेसिकली, है ना. टेप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स. इस पे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है. ठीक है, हाँ, जो एंडोजीनस ओरिजिन ऑफ रूट्स है, ये रूट्स चाहे आपका टेरिडोफाइट्स हो,
ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म सब में ज्यादातर केसेस में रूट ओरिजिनेट होता है एंडोजीनसली, whereas the branches, stem branches and leaves, they are exogenous in origin. ठीक है, तो आगे एक डायग्राम मैंने बनाया है, वहां से आपको मैं समझाता हूं. When we cut section cross section of root or stem, some common features are seen. Outermost structure is in the form of epidermis. Generally it remains unistatose, one cell thick. Then comes a broad or narrow zone of cortex, depending upon different plant groups, depending upon different species. ठीक है, उसके बाद एक अंदर वस्कुलर सिस्टम आता है बच्चों. ठीक है, वस्कुलर सिस्टम आता है which is made up of endodermis, pericycle, then phloem, and lastly in the core region xylem is present. ये स्पेशली मैं टेरिडोफाइट्स के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं. और जो रूट्स अराइज होंगे बच्चों, रूट्स अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल रीजन. तो इस तरह के रूट्स के ओरिजिन को हम बोलेंगे एंडोजीनस ओरिजिन. इफ द स्ट्रक्चर्स लाइक द ब्रांचेस एंड लीव्स, दे अराइज फ्रॉम कॉर्टिकल रीजन, उस समय में हम बोलेंगे दिस इज एक्सोजीनस इन ओरिजिन. For example, leaves are exogenous in origin, stem branches are exogenous in origin. ठीक है, root hairs यहां पर मैंने rhizoid लिखा हुआ है. ठीक है, this is the cross section of rhizome of xylotum असल में. ठीक है, तो इसकी जगह पे कई बार हायर प्लांट्स में भी रूट हेयर्स होते हैं. रूट हेयर्स भी एक्सोजीनस इन ओरिजिन होते हैं, है ना. और जो रूट हेयर्स होते हैं वो दरअसल एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल्स के ही ट्यूबुलर एक्सटेंशंस होते हैं बच्चों. ठीक है, फिर इतना ज्यादा दोबारा जानने की जरूरत नहीं है. मुझे सिर्फ एक पॉइंट बताना था दैट इन टेरिडोफाइट्स रूट्स आर एंडोजीनस इन ओरिजिन. ठीक है, एंड हाउ अ रूट कैन बी सेड टू बी एंडोजीनस इन ओरिजिन, बिकॉज रूट्स अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल रीजन. दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एंडोजीनस इन ओरिजिन. एंड स्टेम इज ऑफ टू टाइप्स. ये मैंने पिछले जो साइलोटम का स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी दिखाया उसमें ही आपको मालूम पड़ गया है. टू टाइप्स, वन इज एरियल स्टेम, ठीक है, विच इज मेंट फॉर बियरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, whereas second type of stem runs subterranean, that is under surface or underground, and this is called rhizome. And rhizome is meant to support aerial system. Why? Because from rhizome our aerial stem arises in all bryophytes, with some exceptions again. With some exceptions. What are those? I will tell in next slides. और जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है बच्चों, जो राइजोमेटस स्ट्रक्चर है, राइजोम, दिस इज ऑलवेज पेरिनियल. ये भी अगेन इंपॉर्टेंट फीचर है. इट इज ऑलवेज पेरिनियल, वेयर एज द एरियल स्टेम इन मोस्ट ऑफ द केसेस, चाहे वो आप साइलोफाइटा के मेंबर्स लो, चाहे वो लाइकोफाइटा के मेंबर्स लो, चाहे वो स्पिनोफाइटा के मेंबर्स लो, सब में एनुअल होता है. मैंने टेरोफाइटा के मेंबर्स इसलिए शामिल नहीं किया बिकॉज टेरोफाइटा या फिलिकोफाइटा, द फोर्थ डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइट्स, बिकॉज इन द मेंबर्स ऑफ फोर्थ डिवीजन फिलिकोफाइटा और टेरोफाइटा, मेजॉरिटी ऑफ द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडीज दे लैक एरियल स्टेम. ठीक है, however again there are some exceptions. One exception is there in the form of Osmunda regalis. This is the member of division Pterophyta or Filicophyta. Here aerial stem is there. There is one more member Cyathea and one more member in the form of Dicksonia. These all are the members of division Pterophyta or Filicophyta, and they possess aerial stem. But remember, my dear students, in majority of the members of division Filicophyta, aerial stem does not exist. In that case, what happens? The leaves, larger leaves, which are called megaphylous structures. So larger leaves in the form of compound leaves, they arise directly from underground stem called rhizome. डिटेल में ये आगे के स्लाइड्स में हम लोग करेंगे. इस स्लाइड का यही एक पर्पस था बताने का कि स्टेम इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज एरियल स्टेम, one is underground stem. Aerial stem is in majority of the cases is annual, with some exceptions.
For example, Osmunda regalis, Cyathea, say Dicksonia. In such members, the aerial stem is पेरिनियल इन नेचर। हालांकि जो अंडरग्राउंड स्टेम होगा, जिसको हम राइजोम कहते हैं, ये हमेशा पेरिनियल होता है बच्चों, ये याद रखना है। दिस इज ऑस्मुंडा रिगेलिस, ठीक है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि नेम अ टेरिडोफाइटा व्हिच लुक्स लाइक एन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ दिस लीफलेट्स, दीज आर लीफलेट्स, ठीक है। ये लीफ नहीं है, क्योंकि लीफ एक कंपाउंड लीफ स्ट्रक्चर है बच्चों। ये एंजियोस्पर्मिक लीव्स की तरह दिखते हैं, ठीक है। मैं एक हल्का सा आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूं। विलो ट्री नहीं बोलते हैं बच्चों, विलो, जिससे एक कश्मीरी विलो बोलते हैं, जिससे क्रिकेट के बैट बनते हैं, एंड इट्स बोटेनिकल टर्मिनोलॉजी इज सेलिक्स। सेलिक्स, जो सेलिक्स के लीव्स होते हैं वो ओस्मुंडा के लीफलेट से काफी हद तक मैच करते हैं बच्चों, ठीक है। ये अगेन ये सिलेबस से संबंधित नहीं है, वैसे ही आपकी जानकारी में वृद्धि के लिए मैंने ये आपको एक पॉइंट बताया। हाँ, अब एक और यहां पर थोड़ा समझाना पड़ेगा दोबारा से। ब्रांचिंग ऑफ स्टेम इज डाइकोटोमस और मोनोपोडियल। यहां पर स्टेम का मतलब है आपका चाहे एरियल स्टेम हो, चाहे वो अंडरग्राउंड स्टेम हो, राइजोम हो, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहीं नजर नहीं आता है बच्चों, which is the characteristic of higher plant groups, say gymnosperms and angiosperms. Sympodial branching. Sympodial branching is not found in pteridophytic group of plants. What is found in pteridophytic group of plants is the dichotomous branching or monopodial branching. और एक कॉमन फीचर मैं बता देता हूं इन दोनों तरह की ब्रांचिंग का। इस तरह के ब्रांचिंग को या ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस को हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी बोलते हैं बच्चों। इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट और इनडेफिनेट ग्रोथ, इनडेफिनेट ग्रोथ वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ब्रांचिंग होगा, ब्रांचिंग हर एक ब्रांच का जो एपेक्स होगा, एपिकल सेल, इट नेवर सीजेस इट्स एक्टिविटी, इट रिमेन्स एक्टिव थ्रू आउट लाइफ। ये याद रखना बच्चों, apex always remains viable in case of dichotomous branching and monopodial branching। अब ये दोनों क्या है, मैं आगे इमेजेस के साथ साथ आपको समझाने का कोशिश करूंगा। कुछ केसेस हैं जैसे सेलेजिनेला है, यहां पर जो ब्रांचिंग पैटर्न होगा वो शुरू में डाइकोटोमस नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब ये फर्दर ग्रो करता जाएगा, ये समहाउ इट चेंजेस इनटू मोनोपोडियल ब्रांचिंग सिस्टम लेटर ऑन। ये भी मैं आपको बता देता हूं अगले स्लाइड्स में। ये पहला है हमारे पास डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ये सिर्फ मैं एब्रिविएशन में लिख लेता हूं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। दिस इज साइलोटम। फॉर एग्जांपल, देयर कैन बी मेनी जेनेरा वेयर डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज ऑब्जर्व्ड, इज सीन, बट वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू फ्यू एग्जांपल्स। दिस इज वन मोर जीनस, इट इज एक्सटिंक्ट, ठीक है। अभी आज के समय में ये संसार में पाया नहीं जाता है। दीज आर रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉसिल्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज राहिनिया। सो इन राहिनिया एज वेल एज साइलोटम व्हाट वी सी डाइकोटोमस ब्रांचिंग। अब डाइकोटोमस ब्रांचिंग क्या होता है बच्चों, ये ब्रांच मान लो ये राइजोम से आपका एरियल ब्रांच शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं रफ जैसा एक राइजोम ड्रा कर लेता हूं, यहां पर एक एरियल स्टेम शुरू हो रहा है। जो इसका जो एपिकल सेल होता है, एपिकल सेल डिवाइड्स इनटू टू, एंड ईच ऑफ दीज टू एपिकल सेल्स नाउ दे स्टार्ट द ग्रोथ ऑफ देयर ओन। एक एपिकल सेल, दो एपिकल सेल, ठीक है। फिर ये ग्रो करते जाएंगे और हमारा उस एक्सिस को ब्रांचिंग प्रोवाइड कराएंगे। So such type of branching is called dichotomous branching, and it is called indeterminate type or indefinite type of branching. Why? Because apex is viable, apex कभी सीज नहीं होगा इसमें, जो एपिकल सेल का एक्टिविटी है बच्चों, ठीक है। अब
अब जैसे ये ब्रांचिंग आ गया, अब इसने फर्दर ब्रांचिंग करना होगा, तो इसका एपिकल सेल अगेन डिवाइड करेगा इनटू टू, ठीक है, एंड इट विल अगेन शो अ डाइकोटोमस ब्रांचिंग, एंड इट कीप्स ऑन अकरिंग, कीप्स ऑन, ठीक है। अब जैसे ये आया इसका डाइकोटोमस ब्रांचिंग, फिर ये आएगा इसका डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एरियल स्टेम है, ये डाइकोटोमसली ब्रांच हुआ, ठीक है। अब जो ये वाला ब्रांच है इसने फिर से डाइकोटोमसली ब्रांचिंग शो किया, ठीक है। जो ये वाला एक्सिस है इसने फिर से डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो किया, लेकिन फर्क क्या है, इसमें जो एपेक्स है, एपेक्स का एक्टिविटी कभी सीज नहीं होगा बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न इज कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांचिंग। वेयरएज सिम्पोडियल ब्रांचिंग में क्या होगा, मेन एक्सिस कीप्स ऑन ग्रोइंग कंटिन्यूअसली, और जो ब्रांचेस आएंगे वो आपका, ये ब्रांचिंग जो होता है ऐसे केसेस में एक्स्ट्रा एक्सिलरी होता है बच्चों। एक्सिलरी ब्रांचिंग इज नॉट फाउंड इन टेरिडोफिटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स। एक्सिलरी ब्रांचिंग पैटर्न जो है, एक्सिलरी ब्रांचिंग पैटर्न का क्या मतलब हुआ, एक्सिलरी बड से निकलता है जो, ठीक है। और ज्यादातर केस में क्या होता है, लीफ के एक्सिल पे वो एक्सिलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है। तो टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं है बच्चों। टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचिंग होता है हमेशा, ठीक है। जो मोनोपोडियल ब्रांचिंग में व्हाट हैपेंस, द मेन एक्सिस इट कीप्स ऑन ग्रोइंग कंटिन्यूअसली विद द एक्टिविटी ऑफ apex, whereas the lateral branches keep on forming and main axis always remains one, इसीलिए इसको मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहा जाता है। इसके अलावा ज्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है। इस पॉइंट का मेन मतलब यह था बताने का कि टेरिडोफाइट्स में जो ब्रांचिंग पैटर्न है, चाहे वो अंडरग्राउंड स्टेम हो चाहे वो एरियल स्टेम हो, या तो डायकोटोमस ब्रांचिंग रहता है या मोनोपोडियल ब्रांचिंग सिस्टम रहता है। जैसे जो साइलोटम का अंडरग्राउंड स्टेम है कॉल्ड राइजोम, यहां पर भी आप एक चीज नोट करोगे बच्चों, ठीक है, यहां पर भी डायकोटोमी नजर आ रहा है, ठीक है, डायकोटोमस ब्रांचिंग नजर आ रहा है। एक और खास बात मैं बता देना चाहूंगा, डायकोटोमस ब्रांचिंग की एक और पहचान ये होती है कि जैसे डायकोटोमी हो जाता है, इन दोनों का ग्रोथ लगभग बराबर बराबर रहता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि जैसा डायकोटोमी किया, एक एक ब्रांच जो है छोटा नजर आए और दूसरा ब्रांच लंबा नजर आए, तो कई बार हमको ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस सूरत में हम इसको मोनोपोडियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये लेटरल ब्रांच आ गया और एपेक्स आपका कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। तो डायकोटोमी की पहचान यही होती है कि जो ब्रांचेस बने हैं इक्वल टू बाइफर्केशन। इन डायकोटोमी बाइफर्केशन इज देयर ऑलवेज, ठीक है, और मोर और लेस दीज टू ब्रांचेस ग्रो इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली, ये बच्चों। अब जैसे एक और मोनोपोडियल ब्रांचिंग का एक एग्जांपल यहाँ इक्विसिटम है। हालांकि जो इक्विसिटम में ग्रोथ इन लेंथ फिर होता है बच्चों, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। जब हम ये जीनस टाइप पकड़ेंगे तभी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पर आप लोग क्या देखोगे बच्चों, इक्विसिटम के केस में दिस इज अंडरग्राउंड राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम, फ्रॉम वेयर एरियल स्टेम इज अराइजिंग, एंड एरियल स्टेम it has single main axis from where lateral branches are arising। ये जो पतले पतले स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये ब्रांचेस हैं बच्चों, ये लीव्स नहीं है। लीव्स स्पिनोफाइटा के मेंबर में स्केली लीव्स होते हैं, नॉन ग्रीन, ठीक है, ये आगे करवाऊंगा मैं आपको। सो दिस कैन आल्सो अगेन बी साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोडियल ब्रांचिंग सिस्टम। फिर एक और मैंने बताया था कि इन सम केसेस ब्रांचिंग इज dichotomous in the beginning, but in later stages it becomes a monopodial। तो one example is here our selaginella। ये पहला ब्रांचिंग सिस्टम आया, ये हमारे पास डायकोटोमी है, फिर यहां पर भी हमको डायकोटोमी नजर आ रहा है, यहां पर भी हमको डायकोटोमी नजर आ रहा है, ठीक है, यहां पर भी हमको डायकोटोमी नजर आ रहा है, इधर भी हमको डायकोटोमी नजर आ रहा है। लेकिन जब यहां से आगे फर्दर ग्रोथ दिखा रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो ये मोनोपोडियल ग्रोथ है। Main axis is growing continuously by the activity of apical meristem, whereas lateral branches are being formed accordingly। तो ये दोनों क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है।
monopodial branching and dichotomous branching, which is common in members of pteridophytes. अब अगला पॉइंट, इन सम pteridophytes aerial stem is not present. मैंने बताया था आप लोगों को, ज्यादातर मेंबर्स में, लाइकोफाइटा के मेंबर्स में, सॉरी एरियल स्टेम है ना, एरियल स्टेम नॉट इन लाइकोफाइटा मेंबर्स, इन मेंबर्स ऑफ फिलिकोफाइटा और कॉल्ड टेरोफाइटा. एग्जांपल मैंने एक ही दिया यहां पर है ना, एडियंटम. व्हाट डू यू सी इन एडियंटम? दैट द कंपाउंड लीव अराइज डायरेक्टली फ्रॉम राइजोम. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है. अगला पॉइंट है, इन सम टेरिडोफाइट्स अंडरग्राउंड स्टेम इज एब्सेंट. अंडरग्राउंड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ राइजोम. दिस इज कॉमन इन द मेंबर्स ऑफ डिवीजन लाइकोफाइटा और लेपिडोफाइटा. ठीक है बच्चों, मैं सेलेजिनेला का आपको इमेज दिखाता हूं. ठीक है, दिस इज सेलेजिनेला, दिस इज कंप्लीट स्पोरोफाइट, दिस इज द एरियल पोर्शन ऑफ this underground portion of sporophyte in the form of root. There is no rhizome, and this is the aerial part of a sporophyte, which is in the form of aerial stem, dichotomously or monopodially branched aerial stem. So in the members of similarly एक और एग्जांपल है लाइकोपोडियम. अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाहोगे, लाइकोपोडियम भी लाइकोफाइटा का मेंबर है. इनफैक्ट लाइकोपोडियम जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है बच्चों, सेकंड डिवीजन का, लाइकोफाइटा का. ठीक है, तो उसमें भी अंडरग्राउंड स्टेम एब्सेंट नजर आएगा आप लोगों को. फिर एक और बात, एक और पॉइंट आता है, इन सम मेंबर्स द एरियल स्टेम एज वेल एज अंडरग्राउंड स्टेम दे शो ज्वाइंट्स, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक in none of the other members or none of the other three divisions called lycophyta or ये साइलोफाइटा और टेरोफाइटा. किसी में भी ज्वाइंटेड स्टेम्ड स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिवीजन स्पिनोफाइटा का. ठीक है, और मैंने आपको एक बात पहले ही बता दिया था कि जो इक्विसिटम नामक जो प्लांट है, जिसको हम कॉमनली गोल्ड रश भी बोलते हैं या हॉर्स टेल भी बोलते हैं, ये एक सिंगल जीनस है पूरे डिवीजन का. जिस प्रकार से साइलोटम और मैसिप्टेरिस डिवीजन साइलोफाइटा के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं और सोल लिविंग मेंबर्स हैं, सिर्फ 2 मेंबर्स जिंदा हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर आज के समय में, उसी प्रकार से इक्विसिटम इज द सिंगल लिविंग जीनस of this division called Spinophyta और Arthrophyta. अब इस आर्थ्रोफाइटा शब्द से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, है ना. हम एनिमल्स में कुछ बोलते हैं हम आर्थ्रोपोड्स. व्हाट आर आर्थ्रोपोड्स? सम एनिमल्स दे हैविंग ज्वाइंटेड लेग्स. तो यहां पर प्लांट के केस में लेग तो है ही नहीं, बल्कि हमारे पास क्या है, स्टेम है, एरियल स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, लेटरल ब्रांचेस हैं, वो सब में ज्वाइंट्स नजर आते हैं बच्चों. तो ये पॉइंट भी हो गया. नाउ नेक्स्ट, एरियल स्टेम में भी माइक्रोफाइलस और मेगाफाइलस. माइक्रोफाइलस का मतलब हुआ लीव्स आर सिंपल. अब सिंपल लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ क्या होता है, ये मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है बच्चों. सिंपल लीव्स and these are small in size. The pteridophytes sporophytic plant body bearing such type of leaves, simple leaves which are very small in size, such pteridophytes are said to be microphylous pteridophytes. Whereas if the pteridophytes they bear larger leaves and majority of the cases compound leaves, such sporophytic plant bodies are said to be megaphylous in nature, and megaphylous leaves are the characteristic feature of division Filicophyta. Filicophyta के members में leaves are always larger in size,
or the plant bodies are sporophytic plant bodies are always megaphylous, whereas the members of division Xylophyta, Lycophyta and Spinophyta, they are microphylous in nature. मैं पीछे फिर से images बता देता हूं. This is the member of Spinophyta ecosystem. Leaves are small. This is Selaginella, the member of division Xylophyta. Here again, leaves are simple and small. And third example in the form of Xylotum. This is member of division Xylophyta, the first division. Here again, leaves are simple, not compound, and small in size. So such plant bodies are said to be microphylous in nature. जो बाकी का हिस्सा है लेक्चर का वो अगले हाफ में करेंगे.